ریشیپ یور لائف ان دا لائٹ آف قرآن. ریشیپ مطلب اپنی زندگی کو بدلائیں, اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں. بیکاز ہم لوگ تبدیلی ظاہرانہ طور پہ تبدیلی کرتے ہیں. وین اٹ کمس ٹو دا انر سول آف اس, اس میں تبدیلی کرنا ضروری ہے. جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں نا, جس طرح ہم لوگ ایک چیز کہنا چاہتی ہوں بس, کہ ہم سب لوگ مٹی سے بنے ہیں اور مٹی میں ہی جائیں گے. مٹی سے بنے ہیں اور مٹی میں ہی جائیں گے. مٹی جو ہے انسان کا غذا, ایک غور کرنے کی بات ہے, دا سول جو روح ہے اپنا مٹی سے نہیں آیا ہے. روح سول ہیز کم فرام ابو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح ڈالا ہے. اٹ ہیز کم فرام ابو, اٹ از ناٹ فرام دا مڈ. مٹی سے نہیں آیا ہے, زمین سے سول نہیں آیا. سول آیا ہے آسمان سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے سول. ٹھیک ہے. اور جو جسم ہے, جسم مٹی سے بنا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک انسان کا جو جسم ہے, ایک انسان از اے کمبینیشن آف ٹو میجر تھنگس. ون از جسم, دوسرا چیز از سول. جسم اور سول ٹوگیدر آر دیر ان اے ہیومن بینگ, دین اونلی وی کین سے اٹ از الائیو. اے ہیومن از الائیو کب بول سکتے ہیں؟ جب جسم بھی ہونا ضروری ہے اور روح بھی ہونا چاہیے. اگر جسم نہیں ہے تو روح نہیں, روح نہیں ہے تو جسم نہیں. تو اسی طرح ہر چیز کے لیے غذا ضروری ہے. غذا مطلب فوڈ فار دا تھنگس. تو جس طرح جسم مٹی سے آیا ہے, اس کا غذا بھی مٹی سے ہی آئے گا. جیسا کہ انسان مٹی سے بنا ہے تو اس کا غذا مٹی سے ہی ملے گا. جیسے کہ فروٹس ہو, آپ کو فروٹ زمین سے ہی ملے گا. فروٹس ہو یا چاول ہو, دال ہو یا ویجیٹیبلس ہو یا نان ویج ہو, انڈے ہو, یہ جاندار, یہ پورے آپ کو زمین سے ہی ملیں گے. آپ کو آسمان سے کوئی چیز نہیں آئے گا. رائٹ. تو زمین سے آیا جو انسان کو جسم مٹی سے بنا ہے, تو اس کا غذا مٹی سے ہی ملے گا. اس کو مطلب وہاں سے ہی, پیداوار سے ہی ملے گا. اسی طرح جب روح کی بات کی جاتی ہے تو روح آیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, اوپر سے آیا ہے, تو اس کی غذا بھی آپ کو وہیں سے ملے گی. جہاں سے آیا ہے اس کی غذا بھی وہیں سے ملے گی. غذا آپ کو زمین سے نہیں ملے گی, غذا آپ کو مٹی سے نہیں ملے گی. روح کی غذا از ناٹ مٹی, روح کی غذا از قرآن شریف, روح کی غذا از حدیث. تو جو بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجے ہیں, that is the غذا of روح, the soul. The food for the soul is your Quran. That's why we say as reshape your life in the light of Quran. اپنی زندگی کو سنواریں قرآن کی روشنی میں. تو ہم لوگ ایز یوزول ہمیشہ زندگی جسم کا خیال کرتے ہیں, جہاں پہ کھانا کھانا ہے, ہمیں یہ کرنا ہے, یہ کھائیں گے تو اچھا ہے, صحت کے لیے ایکسرسائز کرنا ہے, کھانے پینے کا خیال کرنا ہے, نیند ضروری ہے. ہماری نیند بھی ہمارے جسم کے لیے ہے. نیند ہمارے جسم کے لیے, کھانا پینا ہمارے جسم کے لیے, سونا ہمارے جسم کے لیے, اور ہے نا باہر گھومنا ہو یا ایک چینج آف مائنڈ کرنا ہو, ایک انٹرٹینمنٹ اس جسم کے لیے ہے. ہر چیز ہم جسم کے لیے کرتے ہیں, ہر چیز ہم کرتے ہیں. چاہے ایکسرسائز آپ کر رہے ہیں, آپ جو بھی کرتے ہیں جسم کے لیے کرتے ہیں. واٹ اباؤٹ دا روح؟ روح کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ روح کی غذا کو کیا ہم لوگ روز اس کو نرش کر رہے ہیں یا نہیں؟ روح کی غذا کو نرش کرنا بہت ضروری ہے. روح کی غذا از itself is قرآن شریف and حدیث. جس طرح قرآن شریف کو پڑھیں گے, سمجھیں گے, عمل کرنا چاہیں گے, تو آٹومیٹکلی آپ کے جسم میں, روح میں مطلب چینجز آنا شروع ہوں گے, آپ کے دل میں چینجز آنا شروع ہوں گے. That is the thing. The power of the Quran Sharif is what? It absorbs your heart and it changes you. So بسم اللہ آغاز کرتے ہیں ہم لوگ سورہ فاتحہ کی تعارف. Before starting with سورہ فاتحہ, let us know what سورہ فاتحہ talks about. سورہ فاتحہ سے مراد کیا ہے؟ جب ہم لوگ فاتحہ کہتے ہیں, what does it mean? اس کا معنی, لفظی معنی معلوم ہونا ضروری ہے. الفاتحہ کا معنی ہے کھولنا, کسی چیز کو کھولنا, کسی چیز کو شروعات میں کرنا, کسی چیز کو آغاز کرنا is called as فاتحہ. فاتحہ جس طرح ہم لوگ کا دنیاوی ٹرم رہتا ہے, چلو ہم لوگ فاتحہ کریں گے, یہ کریں گے, درود بھیجیں گے, فاتحہ کریں گے, that is wrong. ایز پر قرآن شریف میں جس طرح سورہ فاتحہ دیا گیا ہے, اس کا معنی والا, اس کا میننگ ہے کھولنے والی کتاب. یہ سورہ کب نازل ہوا اور کتنی آیتیں ہیں اس میں؟ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا ہے.
ये सूरा, प्लीज गर्ल्स, आई थिंक दे स्टार्टेड मेकिंग स्क्रैचेस एंड ऑल दोस थिंग्स. बच्चों को बोले आप कोई भी हैंडल नहीं करेंगे बच्चे लोग, बिकॉज स्क्रीन पे स्क्रैचेस आना स्टार्ट हो रहे हैं. ये सूरा मक्का में नाजिल हुआ है. मुसहफ के तरतीब के एतबार से पहला नंबर है. मुसहफ के तरतीब मतलब कुरान शरीफ की जो बुक है, तो मुसहफ किसे कहते हैं? कुरान शरीफ को मुसहफ कहते हैं. ठीक है, तो मुसहफ के एतबार से पहला सूरा है. द मोमेंट यू ओपन कुरान शरीफ, आपको फर्स्ट सूरा दिखाई देगा. तरतीब, नुज़ुल तरतीब के हिसाब से 5th नंबर है. नुज़ुल तरतीब मतलब कुरान शरीफ कब नाजिल हुआ, आयतें जब नाजिल होते हैं ना, तो फर्स्ट नहीं, इट इज अ 5th सूरा दैट हैज नाजिल हुआ है. इस सूरह के 7 आयतें हैं. इस सूरह की कितनी आयतें हैं? 7 आयतें हैं. सो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मालूम होना जरूरी है. सूरह फातिहा के कई नाम हैं. देखिए, अगर आप देखेंगे हदीस के हिसाब से देखेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उम्मुल कुरआनी, उम्मुल कुरान, उम्मुल कुरान मतलब कुरान की माँ, व उम्मुल किताबी, और किताब, किताब की माँ है. व सबउल मसानी. जब हम लोग सब मतलब सब्त मतलब 7 को कहते हैं, मतलब मसानी दोहराने वाली. वल कुरानिल अजीम, और कुरानिल अजीम है. तो कुरान शरीफ में ये हदीस से हमें क्या पता चलता है कि कुरान शरीफ को डिफरेंट नेम से उम्मुल कुरान कहा जाता है, उम्मुल किताब कहा जाता है, 7 दोहराने वाली आयतें कहा जाता है, और कुरानिल अजीम कहा जाता है. सूरह फातिहा को अलहम्द और अस्सलात क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूरह फातिहा का नाम अलहम्द भी है और अस्सलात भी है. जब हम अलहम्द कहते हैं, व्हाट डज इट मीन्स? हदीस कुर्सी. देखिए, हदीस कुर्सी और हदीस में डिफरेंस क्या है कि हदीस और हदीस कुर्सी में डिफरेंस ये है कि जब भी हम हदीस कहते हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला गिव्स इंस्ट्रक्शंस और मैसेज टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, and in turn he comes and tells us saying that we have to do this one. ये हमें ये करना चाहिए, ये हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं. अल्लाह ताला कहते हैं कि हमें रोजे इस तरह रहना चाहिए. ये सब चीजें it is being told to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to inform his people. ठीक है. when we say as हदीस कुर्सी, when we say as हदीस कुर्सी, इसका मतलब क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला डायरेक्टली खिताब करता है हमसे. he directly speaks to the people. It is not through Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He directly speaks to us. So डायरेक्ट खिताब कर देते हैं हमारे लिए. तो दैट इज व्हाट हदीस मतलब एक ऐसी मतलब हदीस जहां पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला डायरेक्टली अपने बंदों को खिताब करते हुए बात करते हैं, नॉट थ्रू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मैसेज आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट ही सेज मेरा बंदा. He will not say जाके ए रसूल जाके कह दो उनको ये मत करो, कह दो उनको ये मत करो, कह दो उनको मतलब you go and inform them. When we say as hadith कुर्सी, it means that I am मेरे बंदे, मेरे लोग. He refers directly to us. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा रब ने फरमाया, मतलब हम सब का रब ने फरमाया हमें कि नमाज यानी सूरह फातिहा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान 2 हिस्से में तकसीम हुई है. 2 हिस्सों में तकसीम हुई है. ठीक है. अलहम्द, जब बंदा कहता है तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, तो तमाम जहानों का मालिक है. अल्लाह कहता है ये बंदा ने मेरी तारीफ की है, तो ये बंदा ने मेरी तारीफ की है. सो यू नीड टू नो द दलील, यू नीड टू नो द दलील एंड एविडेंस फॉर ईच एंड एवरीथिंग. जब हम लोग कहते हैं अलहम्द, अल्लाह का नाम, ये अलहम्द भी सूरह फातिहा है, कहाँ पे है इसका दलील? आपको ये आयत हदीस कुर्सी इज द दलील दैट इट सेज दैट जब मेरा बंदा मेरी हमद करता है, तो अल्लाह कहते हैं ये बंदा मेरी तारीफ कर रहा है. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अलहम्द. इट इज द दलील, इट इज एविडेंस. अस्सलात, अल फातिहा को अस्सलात कहा जाता है क्योंकि इसका पढ़ना नमाज को दुरुस्त करता है. इट इज एक्चुअली अस्सलात इज अ बैकबोन ऑफ नमाज. जो इंसान जब भी नमाज जब पढ़ता है, अगर सूरह फातिहा नहीं पढ़ा, तो इट इज द नमाज इज बीन नलिफाइड. नमाज जाया हो जाएगा, नमाज एक्सेप्ट नहीं होगा.
So it is very very important that Surah Fatiha पढ़ना जरूरी है नमाज में. That's why we say it is a backbone of the namaz. सूरह फातिहा को अश-शिफा भी कहा जाता है और सूरह फातिहा को अर-रुक़य्या भी कहा जाता है. अश-शिफा और अर-रुक़य्या, एक्चुअली देखिए, इफ यू जस्ट कम टू नो, हदीस मफ़हूम में आता है कि एक सरदार था, सरदार की तबीयत ठीक नहीं थी, सरदार को पॉइजन हो गया था, कोई पॉइजन कर दिए थे सरदार को, कोई बिच्छू काट दिया था या कुछ ना कुछ हुआ था, पॉइजन हो गया था. फॉर दैट रीजन सब लोग पूछना शुरू किए हैं, किसी को पता है क्या, किसी को कोई भी आयतें पता है क्या जहां पे इसको आप दम कर सकते हैं, जहां पे इसको शिफा दे सकते हैं. सो एट दैट टाइम वन पर्सन हैज हर्ड सूरह फातिहा फ्रॉम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो वो आदमी क्या किया था, सूरह फातिहा पढ़कर ही दम किया था, सूरह फातिहा पढ़कर लेकिन वो फूका था. सो उसके बाद ही वाज बीन क्योर्ड. आफ्टर दैट people started asking me, what did you read, क्या चीज आप पढ़े थे? Then he said कि I have seen, I heard that रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मतलब इन्हें शिफा भी कहते हैं, ये रुक़य्या भी है, रुक़य्या भी है और शिफा भी है. सो शिफा और रुक़य्या सूरह फातिहा है. सो दैट मीन्स एक इंसान को जब भी कोई बीमारी होती है, कोई भी तकलीफ होती है, तो सूरह फातिहा पढ़ें और फूकें उस पे सूरह फातिहा, और खुद वो आदमी को, वो इंसान को बोले आप सूरह फातिहा पढ़ें, बिकॉज सूरह फातिहा यूनिवर्सली एवरीवन शुड नो दैट. तो सूरह फातिहा पढ़ें बोले, सो दैट लाइक यू नो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिकॉज उस यकीन से एक चीज याद रखें, जब तक आप यकीन नहीं करेंगे, मैजिक डजंट हैपन. Magic doesn't work unless and until you don't believe in that. क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक हदीस मफ़हूम में कहते हैं कि मैं बंदे की गुमान के मुताबिक हूँ. अगर मेरा बंदा समझता है कि ये होगा तो होगा, अगर वो समझता है कि ये नहीं होगा तो मैं उसके गुमान के मुताबिक हूँ. मैं वो गुमान करता है कि इसके वजह से अगर मैं ये पीर बाबा के पास जाऊंगा तो ये सब होगा, वो गुमान करता है, ही बिलीव्स पीर बाबा, तो मैं ठीक है, मैं उसके बंदे के मुताबिक हूँ. तो इफ यू बिलीव इन दैट, लेट इट हैपन. तो दैट इज व्हाट ही सेज. हमें कोशिश करना है कि हमें सच्चा यकीन, अच्छा यकीन करना जरूरी है. सो अश-शिफा और-रुक़य्या भी सूरह फातिहा का नाम है. तो जब भी हमें अपने आप को शिफा देना है, यकीन रखें उस पे कि ये शिफा है, ये सूरह शिफा है, या रब तू मुझे शिफा दे. तो इंशाल्लाह यू विल फाइंड अ डिफरेंस. और सूरह फातिहा में कितने आयतें हैं? सूरह फातिहा में 8 आयतें हैं. किस वजह से सूरह फातिहा को उम्मुल किताब कहा जाता है? किस वजह से उम्मुल किताब के, when we say as उम्मुल किताब, the mother of the book, the mother of the Quran, क्योंकि कुरान इसी से शुरू होता है. कुरान शरीफ अगर आप देखेंगे, the beauty of सूरह फातिहा is what the first सूरह है सूरह फातिहा, और नमाज का भी शुरुआत सूरह फातिहा से ही होता है. सो नमाज की शुरुआत as well as किताब, कुरान की शुरुआत सूरह फातिहा से ही होता है. What does सूरह फातिहा means? The opener. द ओपनर मतलब ओपन होने वाला, खोलने वाला, आगाज करने वाला, शुरू करने वाला. दैट इज व्हाट वी से एज फातिहा. उम्मुल किताब इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें तमाम मायनों मौजूद है. दैट मीन्स इट इज एन आंसर फॉर द एंटायर कुरान. जहां पे ये बोलते हैं ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या रब हमें सीधा रास्ता दिखा, तो इसका जवाब आपको पूरा कुरान शरीफ है. पूरा कुरान शरीफ इज दिस वन. अगर आप इन डिटेल आप सूरह फातिहा में जाएंगे, इट इज बीन डिवाइडेड, द पीपल आर बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. तो इंशाल्लाह द नेक्स्ट क्लासेस में आपको पता चलेगा कौन है वो 3 कैटेगरीज और क्या दुआएं मांगते हैं हम लोग. तो बंदा और इंसान के बीच में किस तरह ये सूरह फातिहा तकसीम हुआ है, जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अपने हदीस कुसी में कि सूरह फातिहा मेरे और मेरे बंदों के दरमियान 2 हिस्सों में बटा है. तो इंशाल्लाह I'll tell even those set of things to you. हदीस से दलील क्या है कि सूरह फातिहा उम्मुल कुरान है, सब्त मसानी है, एंड कुरानुल अजीम है. अजीम मतलब बहुत बड़ा, अजमतवर. हिया मतलब ये कुरान, उम्मुल कुरानी कुरान है, वहिया सबउस मसानी वहियल कुरानिल अजीम. ये हदीस के अल्फाज है. सूरह फातिहा के these are the different names. अल कुरान, कुरान अल अजीम सबसे बड़ा, शानदार, और सबतुल मतानी दैट मीन्स 7 दोहराने वाली आयतें. उम्मुल कुरान द मदर ऑफ द कुरान. उम्मुल किताब
the mother of the kitab. Al-hamd, hamd matlab sab तारीफ. As-salah, namaz. Ash-shifa, the cure. Ar-wafiya, the complete one, complete है. And ruqayya, इलाज. रुकैया किसे कहते हैं? इलाज को कहते हैं, शिफा क्योर को कहते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ सूरह फातिहा. जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा कि सूरह फातिहा के कितने नेम्स है, आप लिखें, तो यू आर गोइंग टू राइट डाउन ऑल दिस 9 नेम्स. आपको याद होना जरूरी है. अगर आपको एग्जाम में दिया जाएगा कि सूरह फातिहा कब नाजिल हुआ है, नुज़ूल के एतबार से कौन सी सूरा है, यू विल सी एज 5th. When I say कुरान शरीफ में पहला सूरा कौन सा है, you will say as this one. कौन सा सूरह फातिहा. तो कुरान, so that way you should know all these things. ठीक है, चलें फजीलत देखेंगे सूरह फातिहा की. फजीलत इन द सेंस द इम्पोर्टेंस ऑफ सूरह फातिहा. ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारी हदीस है, एंड आई वांट एवरीवन टू नो दिस वन, और आप सब लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी करेंगे. हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, देखिए अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्बास कौन है? अब्बास, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा है. और ये जो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला है, ये चचेरा भाई है, चाचा का बेटा है. तो चचेरा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरा भाई कौन? हजरत अब्दुल्ला. तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे. सो मतलब दोनों आमने सामने बैठे हैं, बातें कर रहे थे. सो ही यूजुअली टेल्स ऑल द थिंग्स ना, जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते हैं. तो उसी दौरान उन्होंने अपने ऊपर से एक जोर की आवाज सुनी. कौन? जिब्राइल अलैहिस्सलाम. उन्होंने फरमाया, ये आसमान का ऐसा दरवाजा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला. आसमान में इतने सारे दरवाजे हैं, वी डोंट नो, बट जिब्राइल अलैहिस्सलाम जानते हैं. ही टोल्ड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में आसमान में एक दरवाजा है जो आज तक नहीं खुला. ये आसमान के ऐसा दरवाजा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला. फिर फरमाया, ये एक फरिश्ता है जो आज से पहले जमीन पर कभी नहीं उतरा. द फर्स्ट, इतने सारे फरिश्ते, अनगिनत फरिश्ते, मतलब यू कैन नॉट काउंट, उतने सारे फरिश्ते हैं. तो ये जो फरिश्ता कुछ पैगाम लेकर आ रहा है, सो ही इज वाचिंग, ही कैन सी दैट वन. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैन नॉट सी. तो आवाज का देखकर ही सेज के दरवाजा खुला है, वहां से एक फरिश्ता आ रहा है, और वो फरिश्ता जमीन पे पहले कभी नहीं उतरा. फिर उस फरिश्ते ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सलाम किया और 2 नूरानी खुशखबरी दी. 2 नूरों मतलब 2 नूरानी खुशखबरी दी थी और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 नूरें आप ही के लिए हैं, आप ही के लिए दी गई है, आपसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई. So that as the 2 most precious thing that has come from Asman just for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his ummat, किसी और को नहीं दिया गया है. वो क्या है वो 2 चीज? एक सूरह फातिहा और दूसरा सूरह बकरा के आखिरी 2 आयत. आप जब भी इन दोनों कलिमात से तिलावत करें तो आपको तलब करी चीज जरूर अता. तलब इन द सेंस जो भी आप दुआ करेंगे आपकी दुआ जरूर पूरी होगी इंशाअल्लाह. That is what सूरह फातिहा एंड सूरह बकरा के आखिरी 2 आयत, ये 2 खुशखबरियां हैं, नूरानी खुशखबरियां हैं. सो इसमें तर्ज अमल का हमारा क्या रहना चाहिए? सूरह फातिहा पढ़ें, दुआ करें, उस यकीन से दुआ करें कि या रब मेरी दुआ कबूल होगी. दूसरी चीज, सूरह बकरा के आखिरी ये 2 आयत जो हम लोग रात में पढ़ते हैं, लाजिम कर लें एंड एट द सेम टाइम दुआ करें, तो इंशाल्लाह दुआ कबूल होगी. कुरान शरीफ सूरह फातिहा कुरान शरीफ की अजीम सूरत है. ठीक है, अब ये देखिए, ये हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने उम्मुल कुरान, दैट मींस सूरतुल फातिहा जैसी सूरा पूरी तौरात इंजील में नाजिल नहीं फरमाई. यही शब्द मसानी है, और अल्लाह फरमाता है कि यही सूरा मेरे और मेरे बंदों के दरमियान तकसीम हुआ है. ठीक है, तो और वो जो भी मांगेगा उसको मिलेगा. बार बार हदीस में आता है कि सूरह फातिहा पढ़कर आप दुआ करें,
जरूर दूंगा मैं। सूरह फातिहा पढ़कर आप दुआ करेंगे, जरूर दूंगा। दैट्स व्हाट इट इज बीन सेड। मेरे और मेरे बंदे के दरमियान किसी और को, थर्ड पर्सन को नहीं रखा है अल्लाह ताला। मेरा और मेरे बंदे के दरमियान कोई रसूल नहीं आया है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है अल्लाह और बंदे के दरमियान। मेरा और मेरे बंदे के दरमियान तकसीम हुआ है, और वो जो भी मांगेगा मैं जरूर दूंगा। सूरह फातिहा हदीस, जहां पे सूरह फातिहा बेहतरीन सूरा है। अबू सईद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि मैं तुझे कुरान की एक ऐसी सूरत बताऊं जो कुरान की सब सूरतों से बढ़कर है, और वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये वो 7 आयत है जो बार बार दोहराई जाती है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये बेहतरीन अजमत वाली है, बेहतरीन है, अफजल है। अगर मैं कहूंगी, आपको पूछूंगी कि अफजल सूरा कौन सा है, इस this hadith is a dalil to say that, dalil in the sense this is the proof to say that कि हर सूरा दूसरे सूरत से फजीलत है। मतलब सबको अल्लाह ताला सेम नहीं बनाया है, सब रसूल को सेम नहीं बनाया, सब सूरतें सेम नहीं है, सब सूरतें आयतें सेम नहीं है। थोड़ों को थोड़े पे तरजीह दिया है, तरजीह मतलब प्रायोरिटी दिया है, प्रेफरेंस दिया है। थोड़े आयतों को प्रेफरेंस दिया है, थोड़े आयतों को दिया है, थोड़े रसूल को दिया है अल्लाह ताला। थोड़े रसूल प्रेफरेंस ही हैज गिवन इन सर्टेन सेट ऑफ थिंग्स। मुअज्जत के हिसाब से किसी और को ज्यादा दिया है, एंड एट द सेम टाइम दौलत के हिसाब से किसी और को ज्यादा दिया है। So everyone he has blessed everyone with different things. So everyone are not same. तो कुरानी शरीफ में हर आयत, हर सूरा इज नॉट द सेम। एवरी वन के अलग अलग दर्जे हैं। इट इज बीन रेड इन डिफरेंट पैटर्न्स एंड डिफरेंट टाइम्स। ठीक है। सूरह फातिहा और नमाज का देखें आप लोग। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई ऐसी नमाज पढ़ी जिसमें उम्मुल कुरान ना पढ़ा हो तो उसकी नमाज ना मुकम्मल है, इनकम्प्लीट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा ये फरमाया। मतलब उम्मुल कुरान ही हैज यूज्ड। उम्मुल कुरान मतलब क्या है? सूरह फातिहा। जो इंसान नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ा तो उसकी नमाज ना मुकम्मल है, इट इज इनकम्प्लीट। अगर ये देखिए, ये क्वेश्चन आई वांट इवन यू पीपल टू इन्फॉर्म योर फैमिली मेंबर्स। अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ना है तो सूरह फातिहा कैसा पढ़ें? The answer for that one is what it is being said कि सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है। ये हदीस से हमें पता चलता है कि नहीं पढ़ेंगे तो इट इज इनकम्प्लीट। जब भी इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, आपके बच्चों को बोल दें, खासकर बच्चों को, शौहर को तो पता रहेगा, बच्चों को बोल दें कि आप लोग आहिस्ता सूरह फातिहा पढ़ेंगे पीछे। जब भी इमाम सूरह फातिहा पढ़ रहे, उनके आवाज के बाद से लेट देम रीड सूरह फातिहा, whereas the other set of surah not required. But सूरह फातिहा is a must because सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे, सुनना नहीं, वो खुद पढ़ना है। पढ़ेंगे तो इट, नहीं पढ़ेंगे तो इट इज इनकम्प्लीट। अगेन ये सूरह फातिहा के नेम्स है। अच्छा, ये स्लाइड आप लोग देखें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। सही मुस्लिम की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हदीस कुदसी है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब अल्लाह ताला कहते हैं कि जब मेरा बंदा कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला जवाब देते हैं। सी गर्ल्स, जस्ट इमेजिन इन दैट वे। ये हदीस है एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी, बिकॉज सही मुस्लिम है। सही मुस्लिम मतलब लाइक इट इज 100% ऑथेंटिक। वी हैव 6 बुक्स हदीस है, जो 2 ज्यादा ऑथेंटिक बुक्स। इंचार्जेस प्लीज रिमाइंड मी सो दैट आई कैन शेयर इट इन द ग्रुप व्हाट आर द ऑथेंटिक हदीस। आप लोगों को इंशाल्लाह हदीस का भी थोड़ा मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगी, जहां पे किसको ज़ईफ हदीस कहते हैं, किसको सही हदीस कौन सा है, और हसन हदीस कैसे कहते हैं। हसन हदीस कितने कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा और सही हदीस कितने कंडीशंस को सेटिस्फाई, बिकॉज सही हदीस 5 कंडीशंस आर देयर। अगर वो 5 कंडीशंस, अगर रावी मतलब नरेटर सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब द नरेटर हैज दिस 5 क्वालिटीज, सो वो जो रावी करता है, सो इट इज कॉल्ड एज सही। सो वी हैव ओनली 2 रावीज, द नरेटर्स whose मतलब hadith are authentic, 100% authentic, that is Sahih Muslim and Sahih Bukhari.
صحیح بخاری اس لیے بیکاز ہی واز فرام ڈے ون سے ہے, تو انشاءاللہ we'll have a little bit of information about صحیح بخاری, بخاری کون ہے وہ. اینڈ the beauty is what, جو بھی لوگ حدیثیں لکھے ہیں, none of the people are from Arab, they are out of Arab, they are not from Arab. ٹھیک ہے. اور صحیح مسلم اگر دے آر ناٹ فرام مکہ ان فیکٹ, سو صحیح مسلم کا اگر دیکھیں گے یہ بھی 5 کنڈیشنز کو سیٹسفائی کرتے ہیں. the person name is Muslim, so یہ بھی 5 کنڈیشنز کو سیٹسفائی کرتے ہیں. that person, for that reason it is called as صحیح. حسن حدیث, حسن حدیث کون سا حدیث ہے جہاں پہ 4 conditions are being satisfied, 5th condition سیٹسفائی نہیں ہے, تو 4 conditions بھی سیٹسفائی کریں گے, it is right, so that is we call as حسن حدیث. ترمذی جو ہے حسن حدیث ہے, ابن ماجہ ہے حسن حدیث ہے, اٹ از ناٹ صحیح. ٹھیک ہے, وہ بھی کریکٹ ہے. تو ٹوٹل 6 حدیث بکس آر دا authentic books that we can refer all the time. اور ایک چیز یاد رکھیں گرلس, کیونکہ جو بھی انفارمیشن آپ کو ملتا ہے بائی نیم حدیث, آپ کو سکھاؤں گے انشاءاللہ جہاں پہ آپ چیک کریں گے یہ صحیح کریکٹ ہے یا نہیں, یہ حدیث جو ہے صحیح ہے یا نہیں, then only you are going to forward. جو بھی ملتا ہے دا ورڈ حدیث ڈال کے جو بھی دے دیتے ہیں, blindly don't believe, blindly don't follow, because آپ غلط انفارمیشن دوسروں کو فالو بھیج رہے اور ان لوگ فالو کریں گے تو وہ گناہیں آپ کو بھی آئیں گے. It is again a chain. آپ کو بھی وہ گناہ آئیں گے, ہم کو بھی آئیں گے اگر ہم لوگ ری چیک نہیں کریں گے. تو میک شیور دیٹ یو آر گوئنگ ٹو ری چیک دیز تھنگس. حدیثوں کو خاص کر, کیونکہ قرآن کی آیتوں کو الحمدللہ وی کین ریفر ان فرام قرآن شریف, ویل بی نوئنگ, بٹ حدیث میں بیکاز یو ڈونٹ ہیو فیبریکیٹڈ, قرآن کی آیتیں فیبریکیشن میں نہیں ہے, اٹ از 100% پیوریفائڈ ہے کون سا قرآن شریف. ویر از کم ٹو حدیث, حدیث ویک حدیث بھی ہے, فیبریکیٹڈ بھی حدیث ہے. ویک حدیث کسے کہتے ہیں جہاں پہ نریٹر چین آف نریشنز ہے نا غائب رہتے ہیں, تھوڑے نریٹرز غائب رہتے ہیں, چین میں غائب رہتے ہیں, فار دیٹ ریزن وی سے ایز ویک حدیث, ڈراپ ہو جاتے ہیں راوی. تو انشاءاللہ لیٹر آن یو ول بی نوئنگ اٹ. آئی ایم جسٹ یوزنگ دیز ورڈس سو دیٹ یہ ورڈس سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو انشاءاللہ وی آر ان the journey of understanding Quran now. تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ لوگوں کا آئے گا. تو بی ویری کیئرفل وین یو آر فارورڈنگ ون حدیث, چیک کریں آپ. تو وہ بکس میں کس طرح چیک کرنا ہے انشاءاللہ I'll be guiding you. چیک کریں, دین اس کے بعد ہی آپ لوگ فارورڈ کریں گے, ادروائز پلیز ڈونٹ. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین, جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میرا حمد و ثنا بیان کی, اور بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے گا. ہر ٹائم the moment you praise اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دل خوش ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میرا بندہ جو بھی مانگتا ہے میں اس کو دوں گا. اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہے گا, یہ اللہ کے نام ہے, اللہ کے نام سے پکارتا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے, اور بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے گا. سبحان اللہ. پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, تو مالک ہے آخری دن کا, مالک ہے یوم الدین, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری عظمت بیان کی ہے. جب یعنی پھر جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے, بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے گا, اور شور مطلب آخرت میں یہ بندے کو انشاءاللہ ضرور ملے گا. یہ ہے what do you say, the division of the ayats. ابھی غور سے دیکھیں آپ لوگ, ٹورڈز رائٹ سائڈ جو ترازو ہے, رائٹ سائڈ اللہ لکھا ہوا ہے, اور سلیو مطلب بندہ, ہم لوگ, اوکے, اللہ اور بندہ لکھا ہوا ہے. اور جو 4th آیت ہے نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور یہ آیت ہے نا آدھا آدھا تقسیم ہے, آدھا اللہ کے لیے آدھا بندے کے لیے. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں گے, لیٹس اسٹارٹ وتھ our first one. الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. یہ کیا ہے تعریف, دونوں مطلب اگر آپ دیکھیں گے آیت نمبر 1 اللہ کی تعریف ہو رہی, الرحمن الرحیم, اللہ تو رحمان ہے اور رحیم ہے, یہ بھی اللہ کی تعریف ہے.
थर्ड वन देखें, मालिकी यौमिद्दीन, मतलब मालिकी यौमिद्दीन मतलब उसका मतलब क्या है, रोजे जजा का मालिक है, द जजमेंट डे का मालिक है. ओके, ही इज द मालिक ऑफ द जजमेंट डे. तो ये 3 आयतें आर फॉर अल्लाह, अल्लाह की पाकी बयान करे, अल्लाह के हम्द सना करे, हम लोग अल्लाह के नाम की तारीफ करें. तो 3 आयतें अल्लाह की तारीफ है. जो चौथी आयत है देखें, इय्याका नअबुदु, सिर्फ तुझी से ही नअबुदु हम इबादत करते हैं, सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं. दैट मीन्स आई एम सेइंग दैट अल्लाह सिर्फ तेरा ही इबादत, व्हेन आई से इय्याका नअबुदु, सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, दिस इटसेल्फ सेज दैट शिर्क से पाक है या रब तू, मैं किसी को भी मैं नहीं मांगूंगी, मैं किसी के पास भी नहीं जाऊंगी. दिस इज अ स्टेटमेंट, सिर्फ तेरी ही. देखिए इया का यहाँ पे वर्ड ये नहीं है नाबुदु, मैं इबादत करती हूँ तेरी, नाबुदु नहीं आया है. द वर्ड इया का सिर्फ तेरी, द वर्ड सिर्फ आ रहा है. व्हेन आई से द वर्ड सिर्फ तेरी, दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड एनीवन इन माय इबादत. ना मैं नजर मांगूंगी, ना मैं दरगों में जाऊंगी, ना मैं ये नजर मांगूंगी अगर ये हुआ है तो ये करूंगी. नो शर्त इज अलाउड इन इस्लाम. ना मैं धागा बांधूंगी, पैर धागा बांधना, बच्चों को ये टीका लगाना, धागा बांधना, ये सब छोड़कर बच्चे को जो दिया गया है, 3 खुल पड़े बच्चे पे फूके, दरूद शरीफ पढ़े बच्चे पे फूके, और ये बोलते हैं ना आयतल कुर्सी पढ़े बच्चे पे फूके, और सूरह फातिहा पढ़े बच्चे पे फूके, ये और बच्चे को है ना मॉर्निंग इवनिंग अस्कार सुनाए, रुकैया सुनाए. दीज आर द बेस्ट क्योर विच इज ऑलरेडी बीन गिवन, रादर देन ये बोलते ना ये पैरों को धागा बांध देते हैं, गले में धागा बांधना हो या काजल लगा देना हो या नजर का टीका लगाना हो, इस पे नजर आती है. और ये बोलते ना ये पूरा हिंदुओं का रिवाज है, दीन में नहीं है. दीन में जो भी चीज इजाद करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बिदत? बिदत का मीनिंग क्या है? मतलब एक नया इनोवेशन, इब्तिदा, मतलब कोई ना कोई नया इनोवेशन जो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बिदत. जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सहाबास किए हैं वो ही हमें फॉलो करना है, दैट्स इट. सो कुरान, और जो इंसान कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़ेगा वो गुमराह नहीं होगा. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ताकीद करके गए कि मैं 2 चीज छोड़ के जा रहा हूं आपके पास, मजबूती से थाम लें, जन्नत इज योर्स. वो चीज है कुरान शरीफ एंड हदीस. तो हदीस में गलत वे में मत जाए, कुरान शरीफ में जो दिया गया है तो कुरान को पकड़ना, इन द सेंस कुरान को समझेंगे तो मैं इबादत में करेक्ट वे में करूंगी. क्या गलत है क्या सही है मेरा कुरान बताता है मुझे. जब तक मैं इन डिटेल में नहीं जाऊंगी आई विल नॉट बी नोइंग इट. ठीक है, इय्याका नअबुदु, सिर्फ तेरी ही मैं इबादत करूंगी, व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगूंगी. यार अगेन आई एम डिक्लेयरिंग, अल्लाह सिर्फ तुझसे ही मांगूंगी मैं, किसी और के पास नहीं जाऊंगी मैं, चाहे वो शू का लेस भी टूटा है, या रब मैं तुझसे ही मानूंगी. अल्लाह जरिया बनाता है, अल्लाह है ना दूसरे सबब बनाता है, जरिया से हमें मिलता है. ठीक है, अल्लाह हिदायत देता है, जरिया बनता है, दरवाजे खोलता है जहां पे हमारी मदद मिलती है हमें. सो इट डजंट मीन दैट है ना अल्लाह को भूल जाए हम लोग. जो भी दुनिया में नेमतें हमें मिल रही है, इट इज अगेन विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, विद द इज़्न ऑफ अल्लाह. तो वो इंसान दे रहा है तो उसकी इबादत मत करें, अल्लाह की इबादत करेंगे. वो इंसान नहीं, कोई और इंसान आपको देगा, लेकिन अल्लाह को मत छोड़े. ओके, ये चीज, ये आयत सेज दैट हम लोग किसी और की इबादत नहीं करेंगे और किसी और से नहीं मांगेंगे. जब हम लोग सूरह फातिहा पढ़ रहे, आई एम डिक्लेयरिंग, या रब मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगी मांगने, या रब मैं किसी और के पास जाकर हाथ नहीं फैलाऊंगी, ना मैं किसी और की इबादत करूंगी, सिर्फ तेरी ही करूंगी. ठीक है, सो दैट इज द वे इट इज बीन डिवाइडेड. अब यहाँ पे देखें बंदा का इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता दिखा या रब. यहाँ पे अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है कि या अल्लाह मुझे ऐसा रास्ता बता जहां पे जन्नत लेके जाए, तेरी जन्नत का रास्ता मुझे बता. तो दिस इज एन आंसर, द कंप्लीट कुरान शरीफ इज द आंसर फॉर दिस. मुझे सीधा रास्ता बता जन्नत के लिए, मेरा सीधा रास्ता जन्नत के लिए इज व्हाट, पूरा एंटायर कुरान शरीफ सूरह बकरा से जो शुरू होता है, दैट इज द एंटायर जर्नी ऑफ things that we have to do to go to Jannah.
सिरातल लजीना अनअमता, ऐसा रास्ता जो, यहाँ पे क्या मांग रहे, सीधा रास्ता बता, ऐसा रास्ता जो सीधा है, जिसको तूने इनाम दिया है, रास्ता जहाँ पे तू गिफ्ट किया है, किसको गिफ्ट किया है, अंबिया को किया है, सालेहीन को, शहदा को गिफ्ट किया है ना जन्नत, वो रास्ता बता। तो उनके क्वालिटीज, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर यू फाइंड अगेन इन ऑल द कुरान शरीफ। और गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन, मतलब ऐसा रास्ता मत दिखा या रब जहां पे तेरा नाराजगी, तेरा गजब आए, तो तेरा गजब आए वो रास्ता मुझे मत दिखा। सो दैट इज व्हाट, ये जो है द 3 आयत इज द दुआ ऑफ द बंदा। द फर्स्ट 3 आयत इज अल्लाह की तारीफ, और है ना फोर्थ वन हाफ अल्लाह का है, हाफ स्लेव का है। दैट्स व्हाई अल्लाह ताला सेज कि मैं सूरह फातिहा में 2 हिस्सों में तकसीम किया हूं, बंदे के और मेरे और बंदे के दरमियान 2 हिस्सों में। ही डिडंट से 2.5 3.5, 7 आयतें हैं, 3.5 3.5 ही हैज बीन डिवाइडेड। ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ तक हमारा क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का इंपॉर्टेंस ऑफ सूरह फातिहा हम लोग आज जो पढ़े हैं, सूरह फातिहा का नेम, कब नाजिल हुआ है, कहाँ पे नाजिल हुआ है, कितनी आयतें हैं उसमें, आप लोग सीखे हैं। दूसरी चीज, सूरह फातिहा के कितने सारे नेम हैं, क्या क्या नेम से सूरह फातिहा के, आपको मालूम होना जरूरी है। और 2-3 हदीस और सूरह फातिहा आपको मालूम होना जरूरी है। खासकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जो हदीस है वो आप लोग कोशिश करें अपने, मफहूम इज इम्पोर्टेंट। मफहूम और हदीस में डिफरेंस ये है कि जब हम लोग कहते हैं कि मैं एक हदीस बयान करती हूँ, दैट मीन्स प्रॉपर पूरा हदीस आपको पढ़ के बोलना है, उसमें गलती नहीं करना है, आगे पीछे जिस्ट जैसा नहीं बोलना है, प्रॉपर वे में पढ़ना है। हदीस मफहूम किसे कहते हैं, मतलब इट इज अ जिस्ट, इसमें ये चीजें पाई जाती है, इट इज अंडरस्टैंडिंग, योर अंडरस्टैंडिंग, योर टेलिंग। सो हदीस मफहूम कहती हूँ, तो यू कैन जस्ट राइट डाउन एनी 2 हदीस ऑन सूरह फातिहा। इफ आई से, you should be in a position to write down in exam. When I say सूरह बंदा और अल्लाह के दरमियान कितने आयतें हुए हैं, तो the first 3 आयत अल्लाह का, इय्याका नअबुदु 3.5, and बाकी का 3.5 is बंदा। ठीक है। और ये जो है ना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो। बाय हार्ट करने की बात नहीं है गर्ल्स, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अपना क्लास खत्म करेंगे, बट एनी डाउट्स, मैं आपको 2 मिनट्स एवरी सेशन के बाद मैं आपको 2 मिनट्स टाइम दूंगी। वैलिड क्वेश्चंस जो भी है प्लीज आप लोग शेयर कर सकते हैं।